Hi everyone. Thanks for taking time out from your busy schedule. So we at Altport Experts we aim and we try to give insights about our market outlook to our investor community. Our agenda is to do these webinars to provide knowledge about markets and products like AIF and PMS. So my name is Devanshu Binlish. I am the Vice President at Altport Experts. Today we have expert Mr. Vikas Agarwalji, who is the founder of Altport Experts. He has 2 decades of experience in the same industry. He has also been part of Berkshire Hathaway's AGMs, where he learned about what kind of strategies works in the markets. So over to you, Vikas sir. Yeah, thank you, Devanshu. Can you see my screen? Yeah, perfectly. Now I think you have stopped sharing it. If you want, you can share it Okay, again. okay, Yeah, I can see your screen now. all right, okay. So let me share the presentation. Okay, can you see my presentation? Hanji. Okay, uh, got it. So first of all, thank you for your valuable time. And like every month, what we'll do is we have done some homework in terms of preparing some data points, which we will share it with all of you. And then maybe we can have some question and answers. So I'll start the presentation. Let me share the screen. Can you see my screen, Yes, Devanshuji? sir. Yes, sir. Okay, so this is the month of January's data. We are on February 2026. Uh, so as you can see, my first slide, basically this clearly indicates that the entire world wants to do business with India. And well, this as an Indian looks to be a little biased statement कि भाई हम इंडियन है इसलिए ऐसा सोच रहे हैं. बट ऐसा नहीं है. अगर आप देखेंगे कि as the world order for any country gets changed, for example, when China became fourth largest or fifth largest from 12th largest, eventually they saw that entire world started dealing with them, and they became one of the largest players in the overall supply chain. सो ऐसा इंडिया के साथ हो रहा है, ऐसा नहीं कि पूरे इंडिया को हमारे साथ में बहुत, पूरे वर्ल्ड को हमारे साथ में बहुत प्यार है. ऐसा नहीं है. एज द साइज ऑफ द इकोनॉमी इज इंक्रीजिंग, as the capability of the economy is improving, and therefore the other nations who are running short of few resources wants to fulfill their resources requirements through India now. And let's look at which are the deals. So आपको पता है, we recently we had a deal with US. We'll talk about it in the next slide, which is called free trade agreement. We'll talk about the data also. इसके अलावा कहाँ कहाँ पे बात चल रही है, तो आपने देखा होगा हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को काफ़ी इन कंट्रीज में विजिट करते हुए. ईयू का आपको पता भी मदर ऑफ ऑल डील हुआ है. यूके के साथ में हमारी डील चल रही है, ऑलरेडी डिस्कशन चल रहा है कॉम्प्रिहेंसिव. अपार्ट फ्रॉम दैट अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इस तरह का इसमें ऑनगोइंग नेगोशिएशन एफटीए के तरफ से चालू है. चिली, पेरू, इसमें ऑनगोइंग डिस्कशन चालू है. श्रीलंका, जापान, रशिया में स्ट्रेटेजिक एनर्जी इंपोर्ट दैट वी कंटिन्यू टू डू. ऑस्ट्रेलिया में इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड अग्रीमेंट दैट इज गोइंग ऑन. यूएई का आपको रिसेंटली पता चला है कि यूएई के साथ पार्टनरशिप अग्रीमेंट इज ऑलमोस्ट डन. ओमान के साथ में ऑलमोस्ट इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट इज डन. सऊदी अरेबिया के साथ दिस इज द ऑनगोइंग डिस्कशन नेगोशिएशन विच इज गोइंग ऑन विद एफटीए. ईयू के साथ में आर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज डन विच इज ऑल्सो कॉल्ड मदर ऑफ all deals. And then apart from that, you have Ireland, Norway, Switzerland. I mean, we've been kind of discussing with them and trying to fulfill the requirements of these countries. So basically, this indicates that the entire world wants to do business with India, and we'll look at what are the reasons. So let's look at the next slide. Now, first thing first, US tariff cuts remove a major economic overhang for India. इंडिया नाउ enjoys a distinct export advantage over एशियन peers. अगर आप देखते हैं बांग्लादेश, उनका टैरिफ रेट देखते हैं, या चाइना का आप टैरिफ रेट देखते हैं एशिया में, तो उसके मुकाबले हमारा जो टैरिफ रेट है वो दैट हैज कम डाउन टू नाउ 18%.
एंड इसके सामने अगर आप देखते हैं, जैसा मैंने बोला, इंडोनेशिया, कोलंबिया, फिलीपींस, थाईलैंड, दैट इज एट अबाउट 19, एंड वियतनाम इज 20 अपवर्ड, साउथ कोरिया इज 25, चाइना इज 32, एंड कनाडा इज 35. So I think it is well placed. Even Bangladesh, which is not mentioned here, is 19%. So this clearly indicates that now it is well placed in terms of uh, tariff rates, and it is very much comparable with other peer group. So clearly we have an edge here that our tariff rate is much lower vis-a-vis other countries. नाउ लेट्स लुक एट नेक्स्ट स्लाइड, इंडिया यूएस ट्रेड स्नैपशॉट. सो देखिए, इंडिया जो है ना, अगर आप, मैंने 2015 से इसमें डेटा लिया है, 2025 10 साल का, तो आप देखिए एक समय पे हम लोग $42 बिलियन का सरप्लस होते थे. मतलब इंडिया का जो सरप्लस था यूएस के साथ में, वो मोटा मोटी $42 बिलियन का था. उसके सामने इम्पोर्ट $21 बिलियन का था. तो फिर भी प्लस में ही चलता आ रहा है हिस्टोरिकली आप देखेंगे तो. ये बढ़ते 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 अभी ये $86 बिलियन का हो गया. और उसके बाद में आपने सडनली देखा कि टैरिफ का एक ये झटका लग गया था एक क्वार्टर में, जिसमें डील साइन नहीं हो रही थी, जिसके वजह से नंबर थोड़े से नीचे हुए, कम हुए. बट अभी नया डेटा आ रहा है जिससे ये इंडिकेट कर रहा है कि अब ये यहाँ से ऐसा एक्सपेक्टेड है कि $50 बिलियन यहाँ से एक्सपेक्टेड है अगले 5 साल में ऐड हो जाएगा. सो मोटा मोटी इंडिया वुड बी डूइंग अबाउट 140 $150 बिलियन ऑफ एक्सपोर्ट टू द यूएस. एंड उसके सामने जो इंपोर्ट है, वो अगर आप ऑयल भी लेना चालू करेंगे यहाँ से, उसके बाद भी इंपोर्ट जो है ना, वो रिमेन 50% पे ही होने वाला है. सो जिसका मतलब ये है कि इंडिया के सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ओपन अप हो गई है, चाहे वो ज्वेलरीज में हो, चाहे जेम्स में हो, या चाहे अदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हो, जिसमें बांग्लादेश, वियतनाम का काफी मार्केट शेयर है. देखिए, पहले जब डील नहीं आई थी तो बोल रहे थे भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब डील आ रही तो बोल रहे बहुत फर्क पड़ेगा. तो ये मैं आपके सामने डेटा दिखा दिया थी कि डील नहीं आ रही थी तब क्या हो रहा था, और आ रही थी तो क्या हो रहा था. तो अगर आप देखते हैं 10 12 साल का डेटा हिस्टोरिकली, तो 16% से हम लोग ग्रो कर रहे हैं एवरेज. 15 16 17 18, कभी कभी 20 20% का भी हमारा ग्रोथ बढ़ रहा है यूएस को एक्सपोर्ट का. एंड इसके अलावा अ, अभी यहाँ से डील होने के बाद में कितना एक्सपेक्टेड है, तो जैसा मैंने बोला कि $50 बिलियन वी कैन ऐड हियर 86 से. तो ऑलमोस्ट 136 140 बिलियन डॉलर का आपका एक्सपोर्ट होगा. और उसके सामने जो इंपोर्ट नंबर होगा, दैट विल बी समवेयर अबाउट 70 75 बिलियन डॉलर. अब ईयू जो है, जिसको बोलते हुए ये जो यूरोपियन यूनियन है, इसमें मदर ऑफ ऑल डील्स हुई है, जिसमें इंडिया का एक्सपोर्ट नंबर देखते हैं. तो यहाँ भी हमने 10 साल का डेटा लिया, पिछले 10 साल का. तो 2015 से अगर आप देखते हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़त नहीं है, बट एक्सपोर्ट नंबर हैज एटलीस्ट गॉन टू $78 बिलियन. अब इसमें बहुत सारी कंट्री आ जाती है, वहां तो यूएस अकेला था, इसमें बाकी की बहुत सारी कंट्रीज आ जाती है इस यूनियन में. एंड उसके सामने इंपोर्ट भी बहुत स्ट्रांग है, $56 बिलियन. तो ये भी आप देखने को मिलेगा कि आगे यहाँ पे भी वी कैन थिंक अबाउट एडिंग अप अनदर $50 बिलियन in next 5 years by 2031 that I am referring to. So that's the kind of projection that we have as a house. अभी आप अगर देखते हैं दूसरी चीज की, ओवरऑल अगर हमारा क्या शेयर है, अगर आप देखते हैं कि भाई इंडिया का क्या शेयर है ग्लोबल एक्सपोर्ट में, तो नीदरलैंड में 5.6 है, जर्मनी में 2.4 है. बाकी आप देखते हैं इटली 1.9, फ्रांस 1.8, बेल्जियम 1.5. मतलब हमारा ग्लोबल चेन में हम है ही नहीं कहीं. बिकॉज मैंने आपको बताया कि बहुत सारे उसके एक रीजन थे, और इंडिया अपने आप में कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है. बट कंजम्पशन के अलावा जो ये गवर्नमेंट चाह रही कि एक्सपोर्ट भी बढ़े, जिससे रूपी आपका डिप्रिशिएट ना हो फर्दर, और उसके सामने आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बढ़े. सो अगर आप एक्सपोर्ट देखते हैं और इंपोर्ट देखते हैं, तो हमारा इंपोर्ट क्या, किस वजह से, मशीनरी, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये हम लोग ईयू से लेते हैं. आने वाले समय में जिस हिसाब से हमारी इंडस्ट्री में डेवलपमेंट हो रहा है, सेमीकंडक्टर खुद हम लोग एक अपने आप में एक बहुत बड़ी इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, जिससे हमें इन हाउस चिप बनेंगी. हम लोगों ने एयरक्राफ्ट बनाने का प्रोविजन लिया हुआ है अभी, डिफेंस के एयरक्राफ्ट ऑलरेडी
मेक इन इंडिया हो चालू हो गया है बनने। मशीनरीज कंप्यूटर्स हम कोशिश कर रहे हैं, तो धीरे धीरे इंपोर्ट कम होगा और एक्सपोर्ट में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। ये यू इंडिया एफटीए कुड ऐड अनदर $50 बिलियन। मैंने आपको बता ही दिया कि अभी ये जो नया हो रहा है जिससे की बेनिफिशियरी जो है हमारी इसमें इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री होगी, फार्मा इंडस्ट्री होगी, केमिकल होगी, एंड लेबर इंटेंसिव सेक्टर होंगे जैसे कि टेक्सटाइल हुआ यूएस में, अपेरियल हुआ, फुटविल हुआ। तो टोटल मोटा मोटी 2031 तक मैंने बोला आपको $50 बिलियन का एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ सकता है। ये ऐसा रिसर्च आईएम के रिसर्च है, द मिंट है, उन्होंने बताया। एंड ऑलमोस्ट 7 to 10 मिलियन पीपल आर वर्किंग इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आप इसे सोचिए कि कितना जॉब ऐड होने वाला है विद द ईयू एंड यूएस ट्रेड डील इन प्लेस नाउ। एवरी 1 बिलियन इन एक्सपोर्ट कैन जनरेट नियरली 1,50,000 डायरेक्ट जॉब्स। देवांशु जी, तो आप लगा लीजिए 50 बिलियन होगा, 1 बिलियन में 1.5 लाख लोग ऐड होते हैं। तो Right. 10 बिलियन में, हाँ 10 बिलियन में 15 लाख लोग, और 50 बिलियन में 75 लैक्स Yeah. जॉब। तो उतनी जॉब्स यहाँ पे क्रिएट हो सकती है इन इंडस्ट्री में जिसमें, और इंडिया का लेबर जो है ना वो बहुत चीप है वर्ल्ड वाइड। अगर आप देखते हैं वीजा भी अदर इमर्जिंग मार्केट, चाहे चाइना हो चाहे बाकी की कंट्री, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि सबसे लोएस्ट जो है ना, आई टॉक अबाउट दैट इन द डेटा नेक्स्ट स्लाइड। अभी आइए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ग्रोस बट इट्स बर्डन ऑन जीडीपी कंटिन्यूज टू डिक्लाइन। ये गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि भाई हम बच्चों पे अपने उधारी दे के नहीं जाएंगे, इन द सेंस दैट दे आर टेकिंग कैपेक्स नाउ बट फिजिकल डेफिसिट मेंटेन रखेंगे। तो जो कैपेक्स है जो ले रहे थे कि भाई मोटा मोटी आप देखो 1 लाख करोड़ का खर्चा कैपेक्स करना चाहता है गवर्नमेंट मोटा मोटी मंथली। इसमें रोड हो गया, बहुत सारे और भी डेवलपमेंट हो गए, रोड बनाना ये। तो एक समय पे ये परसेंटेज वाइज 15%, 16% होता था। जो अभी जैसे जैसे इकोनॉमी की साइज बढ़ रही है, उस समय हम 2023 में हम $3 ट्रिलियन के थे साहब। आज हम 1.8 ट्रिलियन के। तो हमारा जैसे साइज बढ़ रहा है स्पेंडिंग तो वही है ना, स्पेंडिंग 8-9% से बढ़ रहा है। तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 10-11 से बढ़ रहा है। तो जो 1-1.5% का जो गैप आ रहा है, उससे हमारा जो बर्डन है, टोटल बजट का जो बर्डन है एक्सपेंडिचर का, वो कम होते चला जा रहा है, जिससे हमारा जीडीपी जो है वो बढ़ता चला जाएगा और बर्डन कम होता चला जाएगा। जैसा मैंने बोला कि भाई गवर्नमेंट को ज्यादा उधारी नहीं रखनी, तो इन्हें बोल रहे फिजिकल डेफिसिट जो है ये हम कम रखना चाहते हैं। तो अभी जो फिजिकल डेफिसिट है, किसी भी कंट्री का अगर फिजिकल डेफिसिट कम होता है, उसका डेट कम होता है, तो उसकी रेटिंग बढ़ती है कंट्री की। और इसके लिए वेरियस एजेंसीज हैं लाइक मोडी एंड देयर आर मेनी मोर। So there is this data which has come from Sejuan, credit goes to them. So when I was looking at their presentation, one thing that I liked is that they said that the path to macro and fiscal stability is basically that lower spending intensity allows the deficit to keep narrowing down. आप समझे ना मेरी बात, खर्चा कम करेंगे और ये आपका फिजिकल डेफिसिट कम होगा, जिससे ओवरऑल जो बैलेंस शीट की जो इंडिया की हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी। फिर आपको मैंने बताया कि हमारा जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो ये सपना है कि भाई इसको जो है जीडीपी को, डेट टू जीडीपी रेशो है, ये 50% तक लाना है। अब आपको पता है देवांशु जी, बाकी जगह यूएस का आप देखेंगे तो ये 130, 140, 150% है। कोई साइज ऑफ द इकोनॉमी और मार्केट कैप में बहुत फर्क है। और यहाँ पे तो उल्टा है मेरे ख्याल से लोएस्ट होगा। और ऐसा नहीं कि कोई भी प्रोजेक्ट रुक रहे हैं। So with the Agreed. fiscal deficit budgeted at 4.3%, let's see, it can go up and go down, you never know. But to target is at least 4.3 and it has been maintained. And debt to GDP, कि भाई उधारी ज्यादा ना हो कंट्री की, it's further declining from 61% to 55 and going ahead to the tune of 50%. Government is protecting macro stability and while it's also funding the growth. तो ये ऐसा जो ये कॉम्बिनेशन बनाया है कि भाई ज्यादा खर्चा भी ना हो, प्रोडक्टिविटी भी बढ़े। ये इस गवर्नमेंट की नीति है और इस नीति पे वो लगातार काम कर रहे हैं। दूसरी चीज देखने को मिली कि कैपिटल एक्सपोनेंशियल। सो अभी देखिए इंडिया का जो कैपेक्स है दैट इज गॉन अप ऑलमोस्ट 6x इन द लास्ट 10 ईयर्स। मैंने आपको बताया कि मोटा मोटी 1 लाख करोड़ खर्चा कर रहे थे। देखो 12.27 करोड़ का 2027 का टारगेट है, 12 साढ़े 12 लाख करोड़ का।
which is basically building our infrastructure, and it actually helping to to create jobs and ensure that economy continues to grow, because इकोनॉमिक ग्रोथ कौन करेगा? गवर्नमेंट तो खर्चा करेगा। सो आप देखेंगे 2006 में, देखिए, मतलब आप सोचो 1 लाख करोड़ भी खर्चा नहीं कर रहे थे। आप कहाँ से हम कहाँ आए हैं। और आज जो है मोटा मोटी जितना हम 2006 में चालू किए थे जर्नी, उतना उससे डबल तो महीने में कर देते खर्चा। आप सोचो, जहां से मैं अब डेटा लिया है मैंने 2006 से, कि जितना हम टोटल साल में करते थे उससे डबल हम महीने का खर्चा कर रहे हैं। तो आप सोचो कि क्या लेवल पे स्पेंड हो रहा है गवर्नमेंट इकोनॉमी का। दूसरा, ऐसा बोलते भाई प्राइवेट कैपेक्स नहीं हो रहा है, प्राइवेट कैपेक्स नहीं हो रहा, प्राइवेट कैपेक्स हो रहा है, बट कुछ कुछ पॉकेट में हो रहा है जो दिखने को नहीं मिल रहा। तो हमने सोचा कुछ डेटा उसमें भी हम गैदर करें इन्वेस्टर के लिए। सो लिस्टेड कंपनीज आर स्टेपिंग अप, दे आर स्टेपिंग अप देयर इन्वेस्टमेंट्स, एंड दे आर डूइंग लॉट ऑफ प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट ऑल्सो। एलएनटी का मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि भाई जितनी उसकी बुक नहीं, उससे ज्यादा तो उसका ऑर्डर बुक है अगले 5 साल का, 10 साल का, सॉरी। तो अभी अगर आप देखते हैं 2019 से और 2025 का अगर आप कंपैरिजन करते हैं, तो परसेंटेज वाइज नेट ब्लॉक डील में अगर आप देखते हैं तो 31% पे आ गया है, विच इज हाईएस्ट एवर, एवर सिंस वी स्टार्टेड पुट चेकिंग द डेटा। सो 31%। सो ऐसा नहीं है कि सो दिस इज द डेटा दैट आई लुक्ड एट फ्रॉम आशीष सी मेहता एंड सेजवान अगेन। एंड इसका जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स के कैपेक्स अगर आप देखते हैं अनाउंसमेंट इन बिलियन, तो ये देखिए ऑलमोस्ट 41 42 का आ रहा है। तो इस बार के जो बजट है उसकी थीम क्या थी, जो क्लियरली आपने देखा होगा, आप जिन लोगों ने बजट सुना, मैडम जी निर्मला जी बार बार अगेन एंड अगेन शी वाज रिपीटिंग दिस वर्ड कॉल्ड manufacturing. So there is clearly a push on manufacturing. India has realized that they'll have to get on to manufacturing, infrastructure development, empowering the SMEs, MSMEs, and creating more employment. So 10,000 करोड़ रुपए जो है मैन्युफैक्चरिंग की स्कीम के लिए अलग कर दिया। 40,000 करोड़ रुपए जो है अलग कर दिया सेट असाइड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग। 10,000 for biopharma Shakti, 20,000 crores set aside for carbon capture utilization and storage scheme, 5,000 crores for city economic regions, एंड 10,000 करोड़ रुपए एसएमई ग्रोथ के लिए अलग कर दिया गया। इसके अलावा और बहुत सारे पॉइंट्स है, बट मैं आपको ब्रॉडली मैंने आपको बताया कि दिस इज व्हाट दिस बजट एट अ ग्लांस लुक्स लाइक, व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू फोकस ऑन। अच्छा, इसमें आप देखिए डिफेंस में भी लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब आप सोचो, एक मैंने डेटा देख रहा था कि 5 साल में ही, 2020 से ही डेटा लिया मैंने, 15 से लेता तो डेटा काफी डिस्करेजिंग था, पर वहां से भी डबल हो गया है। मतलब मोटा मोटी 1 लाख करोड़ का नियरली डबल हो गया है इंडिया डिफेंस जो बजट है वो। मतलब इन टर्म्स ऑफ अगर आप लैक्स देखते हैं, लाख करोड़, सो 7.84 लाख करोड़, that's the target for 2026-27, and that's the budget allocation which has never been heard of। और ये 4.31 था 2020 में। तो मोटा मोटी 90 80 90% डबल तक आ गया ऑलमोस्ट, अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट डॉक्यूमेंट दैट आई रेफर टू। ऑफ कोर्स इट वाज प्रिंटेड ऑन इकोनॉमिक टाइम्स एज वेल। तो इस तरह की बजट देखने, इसका रीजन एक और भी है कि जैसे आपकी इकोनॉमी शक्तिशाली होती है, जैसे आपकी साइज बढ़ती है, आपको अपना डिफेंस बनाना पड़ता है, नहीं तो बाकी की कंट्री आपको अटैक करने की कोशिश करती है। तो ये जो डिफेंस है, ये लग्जरी नहीं, ये रिक्वायरमेंट है, ये बेसिक नीड है टू कीप यू एंड मी सेफ in our home. Otherwise, other people would not allow you to grow to these levels, you know. I mean, India was like what? We were at 10th largest, then became 7th largest. Now we are fourth largest in the world. And we have a potential to become third largest in next 2 years. So that's the kind of अगर आप थर्ड लार्जेस्ट हो तो आपके आपकी डिफेंस भी थर्ड लार्जेस्ट होनी चाहिए कैपेबिलिटी, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी भी थर्ड लार्जेस्ट होनी चाहिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये देखा गया कि रेलवे जहाँ पे कभी कैपेक्स नहीं लिया जाता था,
वहां पे इस तरह का कैपेक्स लिया जा रहा है। 2.78 lakh crores will be invested because India wants to reduce their logistic cost, which eventually help us to improve our GDP numbers. So 2018 से भी अगर आप देखते हैं तो रेलवे का कैपेक्स है सर्ज मोर देन 5 folds, एंड दे आर ऑल पावरिंग अ मॉडर्न हाई कैपेबिलिटी रेल नेटवर्क। और वंदे भारत वगैरह ये सब आपने देखा ही है, इस तरह की ट्रेन से कॉरिडोर बन रहा है। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड्स एंटर अ हायर गियर, सो 7 न्यू हाई रे स्पीड रेल कॉरिडोर, जिसमें हम पहले बात कर चुके हैं। मुंबई पुणे एक है, हैदराबाद बेंगलुरु है। इससे जो एक कॉरिडोर से ये जो दिल्ली टू वाराणसी टू सिलीगुड़ी एक बन रहा है, एंड डेडिकेटेड ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर जो बन रहा है, नागपुर जो होते हुए जाएगा, जो वेस्ट से पालघर होते हुए नागपुर, भुसावल नागपुर, और आगे वो आखिरी तक खड़गपुर तक जाएगा। तो इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट भी काफी, तो इससे क्या होगा कि आपका कॉस्ट कम होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट। Now, leading indicator point to pick up a real economy activity. Let's look at some of the numbers very quickly. Commercial vehicles. That's number one thing to look at whether you're going the right direction or not. So Q3 FY27 volume hit at all time high. All time high में commercial vehicle बिक रहे हैं, and they're up by 21.5% year on year data, with the momentum which is accelerating into a month on month is only improving. Industrial credit, bank lending to industrial escalated to 13.3%. Vis-a-vis last year it was 7.5% only. उस समय हमारा इकोनॉमी भी लास्ट टाइम जीडीपी नीचे था, 5.5 तक चला गया। The largest structure steel pipe manufacturer reported record high volume in Q3. Daily sales accelerated to 12,000 to 15,000 tons in late December वर्सेस अ नॉर्मल 8-9 हजार टन का काम होता है, जो भी 12-15 हजार टन का काम हो रहा है। Other building material like which is cables, wires, cement, they've also witnessed a good amount of growth. Corporate earnings, which I was not expecting, has escalated to 18% now. And for mid and small cap, you will not believe, Devanshu ji, it is in upward of 30%. आप सोचिए कि इंडिया का जो स्मॉल कैप है वो 2.5 साल में डबल हो रहा है। मतलब हर Right. 2.5 साल में ये जो इकोनॉमी के जो स्मॉल कंपनीज हैं ये डबल हो रही हैं। इस तरह के नंबर, अर्निंग्स नंबर कभी देखने को नहीं मिले। एंड इसलिए हमें लगता है कि इस सेगमेंट में आप रिलेटिवली आपने इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर आपके पास में 10 साल का टाइम होराइजन है। अगर आपके पास में 2 से 3 साल का टाइम होराइजन है तो हम क्लियरली सजेस्ट करते हैं कि स्मॉल कैप इज नॉट मेंट फॉर यू। दूसरा क्या है कि करेक्शन डेप्थ एंड वैल्यूएशन कंप्रेशन हैव इंप्रूव्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब ये है कि अगर मार्केट की बात करते हैं तो 330 स्टॉक्स जो है इंडिया के, जो कि उनके 3 साल के एवरेज पी मल्टीपल से नीचे चल रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पिछले साल का वैल्यूएशन था, पिछले साल 2024 से जो वैल्यूएशन बढ़े हुए थे, वो वैल्यूएशन काफी हद तक नीचे आ गए हैं। और वैल्यूएशन नीचे आ गए और आपकी ग्रोथ बढ़ गई है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है, अर्निंग्स बढ़ गई है स्मॉल कैप्स की, और स्टॉक पे प्राइसेस करेक्ट हुए हैं। So this is the best time for you to allocate more money towards mid and small cap, I would say. High probability of a market bottom. So looks like generally this is the data that I was looking at from Sage One. Samit says that generally we've seen Jan Fab is like people come next calendar year FIIs and they are in selling mode, and overall domestic also they keep selling. But generally we've seen April, May, June, that is the time when result comes and the market tends to be positive. So let's see if the trend continues. Then I think we bottomed out, because from next quarter onwards, this is a trend. I am not projecting anything. This is the data from last 20-25 years. So 2009 से डेटा उन्होंने निकाला है 2026 का। तो मोटा मोटी आप लगा लो 17 साल का डेटा है ये। तो 17 साल में जनरली देखने को मिला जैन फेब खराब ही रहता है, मार्च थोड़ा बहुत ओके जाता है, अप्रैल में बहुत अच्छा समय होता है। अगर ये समय होगा तो इसीलिए ये रीज़न है कि वो स्मॉल कैप अपना जो फंड भी क्लोज कर रहे हैं। एक जो उन्होंने एआईएफ निकाला था वो अप्रैल मई में उन्होंने पुश किया है कि वैल्यूएशन थोड़ी सी अच्छी मिल जाए।
This is the data from a market point of view. Again, I picked up from Sage One. I like what Samit says. Sharp corrections have historically preceded strong recoveries. जब जब मार्केट गिरा है और उसकी जो रिकवरी हुई है वो काफी अच्छी हुई है। जैसे आप 2009 में देखते हैं अगर, तो ड्रॉडाउन जो था जैन टू मार्च 24% था, और उसी समय के बाद में जब बाउंस बैक किया तो 176% से किया। और कितना महीना लगा? 11 महीना लगा। आप देखिए यहाँ पे। फिर 2011 में आप देखते हैं जैन टू मार्च 21% मार्केट गिरा, और वापस फिर ये 2 महीने में 19% रिकवर कर गया। फिर 2013 देखते हैं 21% गिरा, फिर ये 20% कवर कर गया। फिर 2016 में फिर जैन टू मार्च 24% गिरा, फिर ये 60% से रिकवर किया अगले साल। फिर 2018 में फिर 20% से गिरा, फिर वो कवर नहीं कर पाया, इट ओनली ग्रो एट 9%। तो यहाँ पे 2018 खराब गया। फिर 2020 में, 20 इज नॉट द राइट कंपैरिजन बिकॉज दैट वाज अ कोविड टाइम, बट स्टिल दैट मार्केट करेक्टेड बाय 47% एंड रिकवर्ड एट 154%। बट 2022 में अगर देखते हैं, 21 आप हटा दें, 21 भी मार्केट ऊपर ही था, नीचे गिरा ही नहीं। बट 22 में अगर आप देखते हैं तो फिर से 22% नीचे गिरा था, और वहां से वो उठ नहीं पाया। 23 में 11% गिरा था, लेकिन फिर 23 में रिकवरी 90% की आई। फिर अभी 24 खराब गया, आपको पता ही है। फिर 25 में 23% गिरा है, और 25 में ही इतना गिरने के बाद भी वो 31% से रिकवर हुआ था। इसलिए लास्ट ईयर निफ्टी जो है 10% पॉजिटिव में क्लोज हुई थी। अभी 2026 में 9% नेगेटिव है। और अभी देखते हैं कि इसका क्या होगा। व्हाट वुड बी द, आई मीन वी कांट प्रिडिक्ट दैट व्हाट वुड बी द नंबर। सो मिहिर वोरा जी हैं, इनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला था। तो उनका मैं ट्वीट पढ़ रहा था, उन्होंने देखा कि व्हाट स्केल वो, हम लोग स्केल स्केल का बहुत बात करते हैं कि हम लोग जितना खर्चा करते हैं, मोटा मोटी 12 लाख करोड़, उससे ज्यादा तो गूगल ने अनाउंस किया है $180 बिलियन फॉर एआई। व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? एक कंपनी है वर्ल्ड की गूगल, उसने जितना पूरा इंडिया खर्चा करता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में रोड बनाने के लिए और फ्लाईओवर्स बनाने के लिए, आप जब रोड पे निकलते हैं, उससे ज्यादा तो ये उसका एआई का बजट है। तो मुझे अच्छा लगा कि ये एक व्यू है, कोई सही है कोई गलत है ऐसा नहीं है, एक व्यू है। और इंडिया काफी इसमें काम कर रही है। दूसरा एक देखने को मिला है, जो सेमीकंडक्टर का जो मिशन है इंडिया का, ये 6 स्टेट में काम हो रहा है, आपको पता है। सबसे बड़ा काम गुजरात में हो रहा है, फिर उधर जेवर में हो रहा है, वहां पे मोहाली में हो रहा है, भुवनेश्वर में और तिरुपति में हो रहा है। तो टाटा ने खुद ने प्लांट लगाए हैं यहाँ पे। आपको पता है अगर टाटा एंटर करता है तो कितना बड़ा इकोसिस्टम क्रिएट करता है। तो ये जो सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम तैयार हुआ है, ये, इसमें इन्वेस्टमेंट देखिए आप, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, और आप ये देखिए कि कितना बड़ा आउटपुट आने वाला है यहाँ पे। तो धोलेरा में 91,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, एंड ओवरऑल इन्वेस्टमेंट 1,60,000 करोड़ का अभी तक के हो चुका है। एंड इमेजिन द काइंड ऑफ आउटपुट दैट इंडिया विल हैव गोइंग अहेड विद दिस। दूसरा है कि एक जस्ट कंपैरिजन चल रहा था कि भाई वियतनाम से कितना मैन्युफैक्चरिंग में जो लेबर कॉस्ट है वो मैनु वहाँ पे कितना है, चाइना में कितना है, मलेशिया में कितना है, थाईलैंड में कितना है। तो ये देखा गया सबसे कम जो है ना, वो इंडिया में 1.1 डॉलर पर आवर। मतलब आप सोचो, सबसे कम कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग का लेबर का इंडिया में। और दूसरा मेरा एक ये कहना है कि जब जब इस तरह का देखने को मिला है कि जापान में यील्ड अगर चेंज हुई है उनके गवर्नमेंट बॉन्ड्स की, तो इससे ये हो सकता है कि भाई, ये मेरा प्रोजेक्शन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि फिस्कल डेफिसिट ओवरऑल अगर रेट्स कम होंगे ग्लोबली, तो उससे डॉलर वीक होगा। और जब जब डॉलर वीक होता है, तब तक ये देखने को मिला है कि पैसा जो है इमर्जिंग मार्केट में आता है। तो ये चांसेस है कि इस तरह का अभी सिनेरियो बन रहा है, बट आगे बोलना मुश्किल है क्या होगा। सो दीज आर माई थॉट्स एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न। विद दैट आई वुड लाइक टू थैंक यू।
for giving me a patient hearing, and I would be happy to take questions. Over to you, Devanshu ji. Thank you, Vikas sir, for giving a good insight about market outlook. Uh, I think it was very informative. Uh, the data was very crystal clear. तो सर यही है कि लोग पेशेंस लूज कर रहे हैं थोड़ा बाजार को लेके। तो आपका उसमें क्या कहना है, मतलब व्हाट डू यू थिंक अबाउट मार्केट्स नाउ? डेटा तो समझ में आ रहा है बट फिर भी। देखिए, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है देवांशु जी कि मार्केट थोड़ा ओवरसोल्ड हो चुका है। और इट्स बीन अबाउट 1.5 18 months, 20 months to be very precise, that markets are not doing well, both at an index level and overall stock level पे तो काफी नीचे है, 20-25% से डाउन है। या। तो बोलना मुश्किल है क्या होगा। बट जो नंबर ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जो ये इंडिया यूएस का डील वेट कर रही थी वो और हो गया, तो वर्स्ट इज बिहाइंड अस, ऐसा लगता है। ये जो मदर ऑफ ऑल डील्स हुआ है, और जिस हिसाब से इंडिया का एक्सपोर्ट का फोकस है, सेमीकंडक्टर का इन्वायरमेंट बन रहा है, तो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ओवरऑल जो नंबर्स है, अर्निंग्स वापस आ रही है, तो मार्केट एक ही लैंग्वेज समझता है, वो है अर्निंग्स। तो सेंटिमेंट्स इज अनदर एस्पेक्ट। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए अगर डॉलर वीक होता है और इंडिया का जो करेंसी है वो स्टेबल भी होता है फर्दर यहाँ से 90, 91, 92 लेवल पे, तो चांसेस है कि एफ आई आईज में कम बैक। इफ there are two situations, if FIIs don't come back, then let's look at domestic inflow. So domestic inflow, your SIP number itself has gone up to 31,000 crores month on month. So you can stop the typing. And and yeah, Devanshu, just listen to me. या। Stop the typing. Yeah. So then this 31,000 crores that I am talking about, Devanshu ji, uh, that itself would suffice the need. So FIIs अगर आगे नहीं बेचे, because they are a decadal low in terms of their exposure, they are at only 15.5%। एक समय पे ये 22-23% की होल्डिंग थी इनकी, जो कि 15 में हाँ आके रह जी। गई है। तो अगर हाँ वो जी। भी ना बेचे तो भी इंडिया हम्म। ग्रो कर जाएगा, और अगर वो वापस आ गए, अगर डॉलर वीक हम्म। हुआ, एमर्जिंग में आया, तब तो या। फिर हमें काफी तेजी देखने को मिल सकती है। ओवर टू यू। I think we have Jaisar with us online. So he's sitting out of UK. So he has little concern about dollar versus euro. So what are your views on dollar versus euros? देखिए, डॉलर वर्सेस यूरो का जो ये सागा चल रहा है, ये काफी समय से चल रहा है। और So if it can be in English, then it would be a great help. ओके ओके ओके, सो Yeah. अमेरिकन वांट्स टू प्रोटेक्ट देयर डॉलर at all, at any cost. And you see, the whole story starts with oil importing and exporting countries, you know. So they want to ensure that that remains in dollar. And that is one of the reasons, so you would have recently heard that they want to take over Greenland. Venezuela's case is already over. So America is trying its best because America has no option. Their debt level is so high that they are not in a position to even serve the debt, and therefore they want to capture these countries, and they want to take the advantage of this to keep their dollar remain very very powerful. And that is one of the reasons why they are trying to attack on Iran. So I think the Western countries will have to kind of be open up out of the whole union that they have created, and send America out of the union, and boycott them. Otherwise, they're going to have these kind of difficulties, and we continue to see dollar strengthening. I don't see as of now any reason that uh, anywhere that the dollar is showing any kind of weakness, except for the index is going down in the last 2-3 months time, because of because of two or three reasons in America, which is, one is that the unemployment is going up, the interest rates, fiscal deficit is very high, interest rate, they are not ready to, central banks are not ready to reduce it, and this is what Trump wants to do it, and which is not happening. But I see that as of now, this will continue for some more time. Over to you, Devansh. Thank you, sir, for giving insight. So if anybody has any queries, they can post it on the Q&A section. I can take it up from there.
Uh, so we will wait for 2 minutes, sir. If anybody has any questions, then we will take up that, or else we will close the session. Okay, I think nobody has any question as of now. So thank you everyone for giving your valuable time and joining over this on this call. Thank you, Vikasji, for coming on this call and giving us the insights about markets. If anybody has any queries or they want to know more details about markets, they can register on our website, which is www.altportfunds.com, or else they can reach us at vikas@altportfunds.com. Thank you. Have a lovely day ahead, everyone. Bye.